Hello students. Today the agenda is session 9. We have studied till session 8. You must have revised your sessions and then learned a few words. Let's see what session 9 talks about. Now, whenever we talk about any session, it says like if you recall this book's trend, that when it talks about session 9, it is definitely discussing section 1 to section 8 some way and then extends the meaning of this. Now this session talks about a doctor specialist is orthodontist, whole tooth. Now, when we say the word orthodontist, you can very well understand what he is talking about here is he says orthos. You have read about this state, and then you say odontos is tooth. So, ortho and dontist. Ortho means straight. You know, when the orthopedic we were studying, you have to straighten these teeth and all. Now, he's a orthodontist, and you're straightening the teeth. Then we say that we have studied orthodontist. Now we say periodontist है. तो periodontist is what? A gum specialist है. Periodontist is a gum specialist. Now you have to understand the meaning. It says if the term combines odontos with the prefixes peri, and peri means around. And what is around our teeth? Our gums. So that is peri means around. Around means around the teeth is periodontist हो गया. A quick glance in the mirror will tell you the gums surround the teeth more or less. The specialty is obviously then specialty will become periodontics, and the person this adjective will become periodontic. Now you can understand periodontics and periodontic. The periodontist, now you have come from the peri around, and then then you know the word odontos is teeth. So periodontist is the one who cares about our gums. That is the doctor. Now we look into the endodontist. Endodontist is specializes in work on the pulp of the tooth. Now you can see the meaning I've written is soft, wet, shapeless mass of material within the teeth. Within our teeth there is kind of pulp. Okay, जैसे pulp आपका orange में होता है, same kind of pulp is there. So that material जब हम normally कहते हैं ना कि यार वो कीड़ा लग जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो क्या होता है? Those gums keep eating that pulp and then it decays your what you call teeth. So that pulp he talks about, he really works on that pulp of the teeth and the root canal therapy. You must have heard of this root canal therapy. The prefix in this term is endo. Endo from which is inner. Now when you say endo and then inner, यानी you can very well understand कि teeth के अंदर वाले section में he works on that particular thing. जो बाहर कर रहा था वो periodontist है, जो teeth के अंदर काम कर रहा है वो कौन है? एंडोडोंटिस्ट है. जनरली हम सबको ही डेंटिस्ट बोलते हैं, बट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड पेरियोडोंटिस्ट कौन हुआ और फिर एंडोडोंटिस्ट कौन हो गया. होप यू अंडरस्टैंड दिस. एंड देन now you can make the word, if you want to make the word, say what is the specialty. अब इसका जो स्पेशलिस्ट हो स्पेशलिटी होगी उसको क्या बोलोगे? then we say endodontics हो जाएगा. जैसे हमने यहाँ पर बनाया था periodontics, you know, स्पेशलिटी इज periodontics हो गया, तो ऐसे फिर ये इसकी स्पेशलिटी क्या होगी? एंडोडोंटिक्स हो गया. ओके, एंड देन एडजेक्टिव क्या होगा? एडजेक्टिव में जैसे हमने पीरियोडोंटिक बनाया था तो ऐसे ही एंडोडोंटिक बन जाएगा. तो एंडोडोंटिक एक्टिविटीज एंड एंडोडोंटिक्स इज द साइंस स्पेशलिटी एंड द पर्सन द वन हु स्पेशलाइज इन दिस एंडोडोंटिस्ट हो गया. तो एंडोडोंटिस्ट उसका स्पेशलिस्ट हो गया, एंडोडोंटिक्स वो साइंस हो गई यानी वो उसकी फील्ड हो गई, और एंडोडोंटिक उसका एडजेक्टिव हो गया, जो भी वो एक्शन लेता है तो एंडोडोंटिक एक्टिविटीज हो गई. Now, the prefix out. Now you can understand X तो पता ही है. X का मतलब जैसे हमने भी देखा कि पेरी मतलब अराउंड है, एंडो मतलब हमने देखा इनर है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि X का मतलब आउट है. तो फिर combines with odontos is to form the exodontist हो जाएगा. What do you suppose therefore is the work of this particular practitioner? अब exodontist कौन होगा? अब आप देख लीजिए एक्सोडोंटिस्ट कौन हो सकता है आपके हिसाब से? एक्सो का मतलब है क्या? आउट. तो आउट वाला बनाना चाहिए ना. तो आउट, आउट क्या है? टीथ आउट है. तो नाउ वी कैन से दिस फेलो इज ए डेंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ होता है. कभी टूथ हमारा पुल करना पड़ता है और फिर वहां पर वो सब टीथ लगाते हैं, आर्टिफिशियल काइंड ऑफ थिंग. तो ये डॉक्टर कौन हो गया? वो एक्सोडोंटिस्ट हो गया. ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड दैट. देन एंड द टर्म जो स्पेशलिटी होगी अब आप खुद निकाल सकते हैं. अगर एक्सोडोंटिस्ट है तो फिर एक्सोडोंटिक्स हो जाएगा. ओके, एंड देन उसका जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? एक्सोडोंटिक होना चाहिए.
देन इट विल बी एक्सोडोंटिक हो जाएगा। नाउ यू अंडरस्टूड। तो 3 तरीके, एक जनरल डेंटिस्ट हो गया, फिर हमारे पास पता चला कि ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब हमारे पास जो सीधा करने वाला है, फिर 1 हो गया, फिर पीरियोडोंटिस्ट हमने देखा कि वो जो गम्स वाला है, देन वी अंडरस्टैंड एंडोडोंटिस्ट होता है जो हमारे पल्प का अंदर वाला मटेरियल को ठीक करेगा, और फिर एक्सोडोंटिस्ट जो पुल करने वाला हो, एक्सट्रैक्ट करने वाला हो, वो हो गया। और जनरली तो फिर डेंटिस्ट, तो यू नो इट वेल what it is. So now you can understand the different words, and then what is the specialty, and what is the doctor, and what is the adjective. Hope you have understood this. Let's go to the next level. Now measurement. When you say the optometrist, याद है optometrist कौन था? जो हमने कहा था कि ऑप्टिकल का मीटर बनाता है, यानी जो सिर्फ हमारे को स्पेक्स का नंबर देता है, उसकी मेजरमेंट में उसकी एक्सपर्टीज होती है। बायोटेक्नोलॉजी लिखा भी है, मेजर्स विजन। The term is built on opticos view, means इसके ऊपर बना है। मेट्रॉन, you know the word, हमने पहले भी देखा था, मेट्रॉन का मतलब हमारा मेजरमेंट से आता है। We know this word is मेट्रॉन होता है, this is मेट्रॉन। Okay, now मेट्रॉन is the root in many other words, किसी और वर्ड में भी मेट्रॉन आता है। We need to understand when you are speaking ना, you do not bother कि यार ये वर्ड वहां से बना है, लेकिन देखिए मेट्रॉन कहाँ आता है। तो थर्मोमीटर में भी तो कहीं ना कहीं थर्मा आ रहा है, नहीं हीट आ रहा है, मेजर हीट, तो थर्मा वर्ड जो है वो हीट से एसोसिएटेड है। फिर आगे तो मेट्रॉन वर्ड हमें देखिए कि मेट्रॉन है, यहाँ पर मीटर है तो थर्मोमीटर। अब मीटर याद कर लीजिए कि मीटर फिर कहाँ से आया, मेट्रॉन से आया। थर्मामीटर पता मिल गया, तो कोई और मीटर का आप देखें तो आपको याद है बैरोमीटर, आपने साइंस में पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर को चेक करने वाला। अब वो अगर आप देख सकते हो तो बैरोस मीन्स वेट होता है, तो ये उसका रूट वर्ड है बैरोस, तो फिर बैरोमीटर बन गया एटमॉस्फेयर प्रेशर को देखने वाला। एंड देन वी हैव द सिग्मो मैनोमीटर होता है। सिग्मो मैनोमीटर मतलब जो हमारे लिए ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला। सिग्मोस का मतलब होता है वो पल्स के लिए यूज करता है। सेज की ये जो आपने यू मस्ट हैव सीन दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नॉर्मली आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक आते हैं, पहले दूसरे वाले आते थे, तो दिस इज द सिग्मो मैनोमीटर आएगा जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करने के काम आएगा। ओके, एंड देन मीट्रिक सिस्टम तो आपको सबको पता ही है। डेसिमल सिस्टम होता है जिसमें सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर काइंड ऑफ थिंग, ये सब क्या है, मीट्रिक सिस्टम का पार्ट है। अल्टीमेटली वो भी तो मेजरमेंट के ही काम आते हैं। नाउ वी नो दिस मेट्रॉन इज द मीटर, फिर थर्मोमीटर, बैरोमीटर, एंड देन सिग्मा मैनोमीटर, एंड देन मीट्रिक सिस्टम। और भी मीटर होंगे, जहां पर भी मीटर आएगा आपका स्पीडोमीटर भी क्या है, वो स्पीड एंड मीटर है, देन वी से स्पीडोमीटर होता है। तो यानी मेट्रॉन इज द वर्ड फॉर मीटर। लेट्स सी बोन्स, फीट एंड हैंड्स, इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। Then osteopath combines osteopath, ऑस्टोन का मतलब बोन है, और पैथोस यू नो हमने पहले भी कहा था सफरिंग है, डिसीज है। नाउ वी से अगर ये बोन की डिसीज हुई, ऑस्टोपैथ का मतलब क्या हो गया, बोन की डिसीज। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द ऑस्टोपैथी यू विल recall was originally based on theory that disease is caused by pressure of the bones on the blood vessels and nerves। यानी ये जो है वो ब्लड प्रेशर और नर्व्स के ऊपर बीमारी के प्रेशर से ही होती है। ये वो नहीं होता जिसमें हम कहें कि वो ऑस्टोपैथ है तो ये हड्डियों का डॉक्टर है। आगे वो लिखता भी है, ऑस्टोपैथिक प्रैक्टिशनर इज नॉट ए बोन स्पेशलिस्ट। उसको हमने क्या बोला था, वो जो डॉक्टर अलग है, जो हमारा पेडियाट्रिक्स के जो हमारा ऑस्टोपैथ कहते हैं। तो ऑस्टोपैथ का मतलब क्या हुआ कि वो डॉक्टर हो गया जो हमारी बोन्स का, हमारे उसके ऊपर प्रेशर है नर्व्स के ऊपर, उसको रिलीव करने के लिए जो भी एक्सरसाइज कराता है, जो भी मसाज करता है, वो ऑस्टियोपैथ काइंड ऑफ फेलो है, वो ऑस्टियोपैथ है। तो ये हमारा ऑर्थोपेडिक से हट कर है डॉक्टर। ऑर्थोपेडिक है बोन वाला, लेकिन ये जो हमारी मसल्स के ऊपर, जो हमारी नर्व्स के ऊपर बोन्स का प्रेशर होता है, उसको रिलीज करने में जो काम करता है, उसको ऑस्टियोपैथ बोलते हैं। डिस्पाइट द मिसलीडिंग एटिमोलॉजी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द ऑर्थोपेडिक। नीचे वो लिख भी रहा है कि आप इसे ऑर्थोपेडिक से कंफ्यूज मत करिए। तो ऑर्थोपेडिस्ट हो गया जो हमारी बोन से रिलेटेड होगा, लेकिन ऑस्टियोपैथ कौन होगा, जो हमारी नर्व्स को पर जो प्रेशर को रिलीज करेगा, वो आप ध्यान रखिए, ठीक है। एंड देन चिरोपोडिस्ट कौन होता है, चिरोपोडिस्ट, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, हमने पहले इसके बारे में पढ़ा भी था। चेयर मीन्स हैंड है, ठीक है। चिरो यू कैन यूज इट इन इंग्लिश, बस पॉन्स या पोडोस जहां पर भी आएगा वो फुट को इंडिकेट करेगा, ठीक है। जहां भी पोडोस वर्ड आएगा वहां पर
पेडेस्ट्रियन भी यहीं से बना है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस। तो ये पोडोज वर्ड आता है ना, चिरो और पोडोस है, चिरोपोडिस्ट हो जाता है, ये हैंड हो गया। प्रैक्टिस चिरोपॉडी, ये चिरोपॉडी उसकी साइंस हो गई। The term coined in the days before labor-saving machinery and push-button devices, when people worked with their hands and developed calluses on their upper extremities as well as on their feet। आपको याद है हमने इसके बारे में बात करी थी, कैलसिस मैंने दिखाए थे कि हमारे फुट पर हो जाते हैं कई बार, जैसे डॉक्टर से ऐसे जैसे प्लेयर्स खेलते हैं, शूज पहनते हैं तो कॉर्नर पर वो कैलसिस डेवलप हो जाते हैं। उन चीज़ों को एक्सट्रीमिटीज, यानी हमारा एक्सट्रीमिटी का मतलब क्या है, दी हैंड्स एंड फीट, हमारी बॉडी की एक्सट्रीमिटी क्या है, यही वाला। तो यानी जो हमारे एंड पॉइंट के ऊपर यहाँ पर कई बार या यहाँ पर इस सेक्शन में आप ज़्यादा जोर लगाएंगे, टू व्हीलर ड्राइव करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी हार्ड हो जाता है। इन सब चीज़ को डील करने वाला जो डॉक्टर है वो चिरोपोडिस्ट है। And these kind of doctors are required in the kind of, I was telling you once in the one of the sessions कि normally players वगैरह को ज़्यादा जरूरत पड़ती है। फिर जब उसने कहा कि जब लेबर सेविंग मशीन नहीं थी तो लोग हाथ से काम करते थे, तो ज़्यादा देर हाथ से काम करेगा तो यहाँ हार्ड हो जाएगा, ऐसे लोगों के लिए डील करने के लिए वो चिरोपोडिस्ट होता था। तो चिरोपोडिस्ट इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ योर फुट एंड हैंड एक्सट्रीमिटीज की ट्रीटमेंट के लिए, और वो भी इस तरीके की ट्रीटमेंट के लिए करता है जो कैलसिस वगैरह को रिमूव करने के लिए काम करेगा, वो चिरोपोडिस्ट होगा। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड चिरोपोडिस्ट एंड देन दिस चिरोप्रैक्टर, कीप इट वेरी क्लियर इन योर माइंड। चिरोप्रैक्टर हील्स विद द हैंड्स, द स्पेशलिटी चिरोपैडिक। ये चिरोप्रैक्टर जो है वो मालिश करने वाला है, मैंने पहले भी बोली थी, जो मसाज करने वाले होते हैं वो चिरोप्रैक्टर होते हैं। चिरोपोडिस्ट मसाज करने वाला नहीं है, वो इस तरीके के कॉर्न्स को, इस तरीके के कैलसिस को रिमूव करने वाला है। जैसे ऊपर हमने बोला था ऑस्टियोपैथ कौन है, वो नर्व्स के प्रेशर को रिलीज करने वाला है, लेकिन ऑर्थोपैडिक कौन है, वो बोन्स का डॉक्टर है। यानी ऑर्थोपैडिक अलग है, ऑस्टियोपैथ अलग है, तो चिरोपोडिस्ट अलग है और चिरोप्रैक्टर अलग है। चिरोप्रैक्टर मतलब मसाज करने वाला है। यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि वो हील्स विद हैंड होता है, मसाज करके आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते हैं। नो, चिरो मतलब हैंड हो गया। अब देखो तो एक वर्ड हमने देखा चिरोग्राफी है। नाउ यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड चिरो और ग्राफ है, चिरो और ग्राफ आता है, और ग्राफ वर्ड कहाँ आ रहा है, ग्राफ इज ग्राफोलॉजिस्ट। आपने, मैंने इसके बारे में डिस्कस करा था, मैंने बोला था कि ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं जो हैंड राइटिंग पढ़कर एक्सपर्ट होते हैं, चिरोग्राफी करने के एक्सपर्ट होते हैं, यानी जो आपकी हैंड राइटिंग को पढ़कर बता सकते हैं कि क्या करेक्टरिस्टिक है किसी पर्सन के लिए। तो कैन यू वर्कआउट बाय एटमोलॉजी व्हाट चिरोग्राफी इज। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड चिरोग्राफी क्या हुई। चिरो हैंड है, ग्राफ मतलब स्ट्रक्चर है किसका, तो चिरो मीन्स ग्राफीन मतलब राइट से हुआ, ग्राफीन राइट से हुआ। तो देन ग्राफोलॉजी, सॉरी, चिरोग्राफी इज स्टडी ऑफ पेनमैनशिप एंड हैंड राइटिंग, कितना सुंदर लिखता है और कैसे लिखता है, चाहे वो फिर वो ए ऐसे लिखेगा या फिर वो ए ऐसे लिखेगा, टी ऐसे लिखेगा या टी फिर वो ऐसे लिखेगा या टी फिर वो ऐसे लिखेगा। इन सब चीज़ों को स्टडी करने वाला कौन है, स्टडी ऑफ पेनमैनशिप एंड हैंड राइटिंग की स्टडी करता है वो क्या होता है, चिरोग्राफर होता है, और उसकी जो स्टडी होगी वो चिरोग्राफी हो जाएगी। यू कैन अंडरस्टैंड, चिरो मतलब हैंड और ग्राफी मतलब रिटन, ग्राफीन से आया, राइट। तो जो यानी हैंड रिटन को जो स्टडी करेगा, जो उसके बारे में बताएगा, वो चिरोग्राफिस्ट हो जाएगा। देन an expert in writing by hand or penmanship which we say is the penmanship is a lost art in these days of electronic word processing। Naturally जितना आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हैंड रिटन तो कम ही हो जाता है। would be a chirographer, the adjective is chirographic। now we have understood this। now if the suffix mensi, now very important, अगर हम मान लीजिए मेंसी का मतलब वो कहता है, ग्रीक वर्ड मीनिंग फोरटेलिंग है, मान लीजिए अगर ये मेंसी का मतलब है, इस मेंसी का मतलब है फोरटेलिंग, तो कैन यू डिसाइड द वर्ड चिरोमेंसी क्या होगा। नाउ यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, चिरो मतलब हैंड है और मेंसी मतलब फोरटेलिंग है, यानी जो हस्तरेखा के ज्ञानिक होते हैं, जो हाथ देखकर आपका भविष्य बताते रहते हैं। कभी आपने, यू मस्ट हैव सीन दीज काइंड ऑफ पीपल। द पर्सन हु प्रैक्टिसेस चिरोमेंसी इज चिरोमेंसर एंड एडजेक्टिव इज चिरोमेंटिक, द रूट इज, ठीक है, ये आपको समझ आ गया, तो चिरोमेंटिक हो जाएगा। अब ऐसे ही वर्ड हमने पॉज और पॉडोस की बात की थी, याद है आपको, जो पॉज और पॉडोज वर्ड होता है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि पॉडोज वर्ड कहाँ आता है और पॉज वर्ड कहाँ आता है। कई ऐसे वर्ड हैं जो कि पॉडोज से बने हैं। हाँ, चिरोमेंसर की बात करें, चिरोमेंसर कौन है, ए पर्सन हु इज सपोजिटली एबल टू प्रेडिक्ट ए पर्सन्स फ्यूचर बाय इंटरप्रेटिंग द लाइंस ऑफ द पाम्स ऑफ देयर हैंड्स। जो मैंने बोला कि चिरोमेंसर अल्टीमेटली जो हस्तरेखा का ज्ञान उसको पता होता है, वो बता देता है कि ये आपकी
लाइफ लाइन है और ये आपकी लक लाइन है, तो ऐसे लोग मार्केट में हैं जो चिरोमेंसर कहलाते हैं। तो चिरो मतलब हैंड है और मेंसी मतलब उसने बोला फोर टेलिंग है। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द वर्ड पॉडोस। पॉडोस और पॉज से कौन कौन से वर्ड बनते हैं, लेट्स डिस्कस दोज वर्ड्स देयर नाउ। ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस। ऑक्टोपस एक वर्ड होता है, ऑक्टोपस एवरीबॉडी नोज। ठीक है, द एट आर्म्ड, तो उसमें भी तो पॉज वर्ड आ गया नहीं आ गया, अगर आप देखोगे तो ऑक्टो मतलब एट है। ठीक है, तो ऑक्टो मीन्स एट है, यहाँ पर वो बता ही रहे हैं ऑक्टो एट होता है, तो ऑक्टो और पॉज यानी ऑक्टोपॉज बन गया, यानी 8 फीट वाला हो गया ऑक्टोपस, यू नो इट वेल। ओके, एंड देन प्लेटिपस होता है। प्लेटिपस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ करेक्टर, देखो इसके हैंड अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये इस तरीके के होते हैं, ये इस तरीके के वेब्ड होते हैं, सब जुड़े रहते हैं ऐसे वाला। ठीक है, और प्लेटिपस होता है। प्लेटिपस इज स्ट्रेंज वाटर मैमल विद डक्स बिल, वेब्ड फीट होते हैं, इस तरीके के फीट को वेब्ड फीट बोलते हैं, जिसमें फिंगर सारी जुड़ी रहती हैं बीच में, वेब्ड फीट होता है। एंड अ बीवर लाइक टेल दैट रिप्रोड्यूसेस बाय लेइंग एग्स, तो वर्ड दिखाता है प्लेटस मीन्स ब्रॉड और फ्लैट है, हेंस द एटिमोलॉजी इज फ्लैट फुट बन जाएगा, यानी फुट जिसका फ्लैट होता है। कभी आपने देखा हमारा जो फुट होता है नीचे से थोड़ा सा कर्वेचर होता है ऐसे करके, लेकिन किसी किसी का फीट ऐसे ही होता है, मान लीजिए ऐसा पूरा कर्व ना बनता हो तो आर्मी वाले उसे रिजेक्ट कर देते हैं, वो फ्लैट फुट वाले को नहीं लेते। ये फ्लैट फुट होता है क्योंकि पानी को खींचने के पीछे करने के काम आता है। इट वर्क्स लाइक यू नो दैट जब हम रोइंग करते हैं तो वी नो दैट ओर, तो वो ओर वाला काम करते हैं इसके जो फीट होते हैं, दैट इज फ्लैट फुट होता है। तो प्लेटिपस इज द फेलो, तो फ्लैट फुट इज द फुट विद एन आर्क दैट इज लोअर देन यूजुअल होता है। आई वाज सेइंग कि ये वाला जो आर्क होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, मान लीजिए फुट के बीच में, वो किसी के नहीं है, वो बिल्कुल सीधा है, तो फिर फ्लैट फुट कहलाता है। ओके, नाउ देन पोडियम, एवरीबडी हैज सीन, अपने स्कूल में कॉलेज में यू मस्ट हैव सीन योर पोडियम होता है। तो स्पीकर्स प्लेटफॉर्म इटिमोलॉजिकली प्लेसेस फुट, प्लेस फॉर फुट होता है। पोडोस हमने क्या बोला है, फीट के लिए यूज कर रहे हैं। द सफिक्स आईओम ऑफन सिग्निफाइज प्लेस वेयर, तो यानी पोडियम क्या मतलब हो गया, वो प्लेस जहाँ पर आप पॉड यानी पॉडोज यानी जहाँ पर फुट रखते हैं वो पोडियम होता है। तो पोडियम में जब आप यहाँ खड़े होते हो तो यू मस्ट हैव सीन कि हम फुट यहाँ कहीं रखते हैं और फिर यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे होते हैं, दैट इज द प्लेस, तो पोडियम हो जाता है। तो यानी पोडियम है, पॉड इन फुट है, और आई एम द प्लेस है, तो वैसे ही वर्ड बना जिम्नेजियम, जिम है, आप जिम में जाते हैं तो जिम्नेजियम हो गया। ऑडिटोरियम जहाँ पर ए पार्ट ऑफ ए थिएटर और हॉल इन विच द ऑडियंस सिट, वो क्या होता है, वो ऑडिटोरियम हो जाता है। ओके, एंड देन ट्राईपॉड हो जाता है। ट्राईपॉड यू हैव सीन, कैमराज के लिए ट्राईपॉड यूज होते हैं, 3 टांग वाला होता है। तो ट्राई 3 लेग्ड और फुटेड हो जाता है, स्टैंड फॉर दिस थिंग। और ट्राई मतलब यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, ये 3 होता है, ये हमारा ट्राई हो जाता है। एंड देन पोडियाट्रिस्ट हो जाता है। नाउ पोडियाट्रिस्ट इज अनदर नेम फॉर चिरोपोडिस्ट हो जाता है। चिरोपोडिस्ट के लिए जो हमने देखा था हैंड वाला जो था, याद है आपको, चिरोपोडिस्ट था, उसी को हम कभी कभी पोडियाट्रिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि याद है चिरोपोडिस्ट ने कहा था वो एक्सट्रीमिटीज पे काम करता है। तो यानी अगर वो हैंड की एक्सट्रीमिटीज पे काम कर रहा है तो फुट की एक्सट्रीमिटी पे भी काम कर रहा है, तो वो चिरोपोडिस्ट हो गया। यानी अब कई तरीके बड़े क्लोज क्लोज चलते चले जाएंगे, लेकिन अगर आप एक अलग से बना लोगे कि चिरोपोडिस्ट है, चिरोमेंसर है, चिरोग्राफी है, और वो एक दो बारी पढ़ोगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगा कि चिरोपोडिस्ट कौन है, जो हैंड और फुट की इस तरह की एक्सट्रीमिटीज में जब कैलोसिस हो जाते हैं तो उसको रिमूव करने के काम आता है, वो पोडियाट्रिस्ट होता है। ये फुट के लिए भी होता है और ये हैंड के लिए भी होता है। Okay, so this all we have in this session. We have discussed many words and then I have tried to tell you the close meaning of the signs and their work. Hope you have understood. Kindly revise the exercise after this. We'll meet you in the session 10. Thank you very much, my dear. God bless you.